جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسمبلی کے الیکشن کے پیش نظر آج ہم اپنا مینیفیسٹو ریلیز کر رہے ہیں اور حسب معمول جب سے پی ڈی پی بنی ہے اگست 99 میں مفتی صاحب کی قیادت میں اور کافی ہمارے ساتھی تھے، تو یہ ایک مقصد سے بنی ہوئی ہے کیونکہ جموں کشمیر کسی عام ریاست کی طرح نہیں ہے۔ جموں کشمیر پچھلے 77 سال سے ایک انسرٹنٹی، پولیٹیکل انسرٹنٹی بولیے اور کافی انسیکیورٹیز کا مرکز رہا ہے۔ اس لیے 99 میں جبکہ ہم کانگریس میں تھے، میں سی ایل پی لیڈر تھی، اس وقت ہم نے کانگریس چھوڑ کے مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے، ہم نے پی ڈی پی کی بنیاد رکھی اس وجہ سے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو مین سٹریم پارٹیز ابھی تک تو ایسا ہے، آج بھی ہے، کہ مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے عام طور سے وہ پارٹیز بات کرتی ہیں، وہ پارٹیز آواز اٹھاتی ہیں جو مین سٹریم میں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے مفتی صاحب کا اپنا تجربہ، جو اس ملک کے ہوم منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ جو مین سٹریم پارٹی جو ہندوستان کے آئین میں یقین رکھتی ہے، اسی پارٹی کو جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پیش رفت کرنا ہوگی، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہم نے جو ہمارا اس وقت جو ہمارا ڈکلیریشن ہے اس میں کچھ اہم مدے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا مدہ ہے کہ پی ڈی پی ول فیسیلیٹیٹ، یعنی وہ مدد کرے گی جموں کشمیر کے حالات کو ٹھیک کرنے میں، جموں کشمیر کو اس مصیبت کے دلدل سے باہر نکالنے میں۔ اس کے بعد ریکنسیلیشن ود انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز، اور اس کے بعد جب ہمیں موقع ملا، کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی، تو ہم نے انہی مدوں کے اوپر زور دیا۔ اور آج بھی میں سمجھتی ہوں جموں کشمیر کا مسئلہ کہیں گیا نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہر گاؤں میں قبرستانوں کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ جموں میں شمشان گاہ، جس میں ہمارے ہندو لوگ بھی مارے گئے، ہمارے کشمیر کے لوگ بھی مارے گئے، اور مسئلے جو کا تو ہے، بلکہ 370 ختم کرنے کے بعد مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بی جے پی نے چاہا کہ مسئلے کشمیر کو 370 تک لا کے اس کے بعد 370 کے ساتھ اسٹیٹ ہوڈ ہو جائے گا تو مسئلے کشمیر 370 کو ختم کر دے۔ اب مسئلے کشمیر کی بحث جو اس وقت ہے، پہلے تو تھی الیکشن میں، اب سیٹ شیئرنگ ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں ملتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں مسئلہ کشمیر بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی شہادت ہے، جس میں ہمارے ملک کے جوان بھی شامل ہیں جو وردی پہن کے یہاں آ کے شہید ہو گئے، اور ہمارے اپنے جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے ہزاروں بچیاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تو یہ زندہ مثال ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شہید ہے، مگر وہ جو ہمارے قبرستان ہے وہ زندہ مثال ہے کہ مسئلہ کشمیر جو کا تم ہے۔ اور حال ہی میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی خاص کر نارتھ کشمیر کے لوگوں نے دکھایا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک شخص جس کے اوپر انہیں الزام لگایا کہ یہ حریت پسند ہے، یہ سیپریٹسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ٹیرر فنڈنگ میں انوالو ہے، اس کو کامیاب بنایا، اس کا مطلب ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ اس لیے پی ڈی پی کی جو پالیسی ہے، جو مفتی صاحب کا ڈاکٹرین ہے، جو مفتی صاحب کا ویژن ہے، جس کو انہوں نے شروعات کی، اس کو ایک تو کئی لیڈر ہیں وہ ویژن کی بات کرتے ہیں، وہ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، اور 70 سال سے سنا ہے ہم نے، مگر مفتی صاحب واحد ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے ایجنڈے کی بات کی اور اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ چاہے وہ واجپئی جی تھے، چاہے ڈاکٹر منموہن سنگھ، ڈائلاگ ہوا پاکستان کے ساتھ بھی، یہاں کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی، راستے کھلے، راولا کوٹ بھی اور یہاں سے اوڑی بھی۔ تو اسی لیے اسی کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے جموں کشمیر 370 کا معاملہ نہیں ہے، صرف
जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है खाली, जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं है, न सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है, जिसको जैसे हमने पहले भी उसके लिए एक नक्शा दिया मुफ्ती साहब के वक्त में, बातचीत का, रिकंसिलिएशन का, यहाँ भी बाहर भी, मगर मैं कहती हूँ शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए रिकंसिलिएशन की, क्योंकि जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं, शारदा पीठ की बात कर रहे हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित हमेशा बार बार कहते हैं जो लाइन के उस पार है, ट्रेडिशनल रूट्स जो सेंट्रल और साउथ एशिया से, हम उसके लिए स्ट्राइव करेंगे, जदोजहद करेंगे। और जो हमारे लोगों का यहाँ दम घुटता है, पीएससी, पीएसए, यूएपीए और एनिमी एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी मजहबी रहनुमा को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट को आप अरेस्ट कर सकते हैं, ये जी मुल्क का दुश्मन है, उसको खत्म करने की बात करते हैं। और जो हमारे काफी लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, हम उनके केसेस रिव्यू करने की बात कर रहे हैं। हाईवे पे जो हैरेसमेंट होती है उसको हम खत्म करने की बात करते हैं। और जो बातचीत पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां तक मीडिया का सवाल है, जो कदगन है, आप बात नहीं कर सकते कोई इस वक्त। आपको मेरे ख्याल में यहां से पहले वीडियो वहां दिखानी पड़ेगी सीआईडी डिपार्टमेंट में, आपने क्या रिकॉर्ड किया, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। जो 200 से ज्यादा करेगा उसको नहीं होगा वो। और जो वन टाइम सेटलमेंट, जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर पे जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, वो मीटर्स नहीं लगने चाहिए पानी के लिए। और जिन घरों में जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम हम फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो पूरा नहीं पड़ता है। इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के, उनको देखना चाहते हैं हम। स्टैंप ड्यूटी, जो मैंने अपने टाइम पे विमेंस के नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, उस पर मैंने स्टैंप ड्यूटी खत्म की थी, जिसकी वजह से कई प्रॉपर्टीज औरतों के नाम पे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त के गवर्नर साहब ने उसको खत्म किया, हम उसको वापस लाएंगे। और जो सोशल सिक्योरिटी है उसको हम डबल करेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफी सारी चीजें हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज है, फर्स्ट राइट टू लोकल्स, क्योंकि हम देखते हैं हर चीज पे लीज खत्म करो गुलमर्ग में, क्यों? बाहर के इंसान को लीज देनी है। होटल की लीज खत्म करो, क्योंकि अडानी अंबानी को लीज देनी है। तो इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट राइट टू लोकल्स इन ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकल्स को। और जो हमारी लीज है होटलियर्स की, मकान वालों की, जिसको ये एकदम खत्म करना चाहते हैं, हम उसमें भी चाहते हैं कि जो लोकल्स है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिले। केसीसी लोन को हम वेव ऑफ करना चाहते हैं फार्मर्स के। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, जहां जो सेब खुद नीचे गिरता है उसको सरकार खरीदे वाजिब दाम पे। और मंडियां, जैसे कि आप जानते हैं हॉर्टिकल्चर में मुफ्ती साहब ने बहुत काम किया, टोल टैक्स माफ किया, मंडियां जगह जगह बनाई, जो हाइब्रिड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की। पर हम हॉर्टिकल्चर में एक हम ये भी करना चाहते हैं कि जो बाहर से सेब आता है उस पे हम 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना चाहते हैं, ताकि कम से कम लोकली जो यहाँ हमारे लोग जो हैं वो अपना लोकल सेब जो उनको सस्ता मिले बाहर के सेब के मुकाबले में। इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकती, पर जो मुझसे हो सकता है यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले तो जितनी भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल है, वैकेंसीज अवेलेबल है, 1 साल के अंदर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फास्ट ट्रैक रिक्रूट में उनकी भर्ती करेंगे और साफ शफाफ तरीके से। जैसे पुलिस में भर्ती हुई थी, जैसे रहमान तालीम में मुफ्ती साहब के टाइम में भर्ती हुई थी, 60,000 डेली वेजर
جن کو ہم ریگولر کرنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا تھا وہ پینڈنگ ہے، اس کو ہم کریں گے. اولڈ پینشن اسکیم ہم دوبارہ لاگو کریں گے. جو ککس ہوتے ہیں اسکولوں میں جن کو 1000 روپے ملتا ہے ان کو 2500 کریں گے. ہوم گارڈز کی ہم آنریریم بڑھائیں گے. رہبر تعلیم ٹیچرز کی ٹرانسفر کا ہم پالیسی لائیں گے. ڈسٹربڈ ایریا الاؤنس جموں کشمیر پولیس کو دینے کی بات ہے. ریگولرائزیشن آف ایس پی اوز اور منیمم ویجز ایکٹ کی بات ہے. اور کانٹریکچوئل ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں جو پڑھاتے ہیں ان کا آنریریم بڑھانے کی. CIC آپریٹرز کو ان کا تنخواہ بڑھانے کی. رہبر کھیل ریگولرائزیشن کی بات ہے. اور اس کے بعد پاور میں ٹرانسفر آف ہائیڈرو پروجیکٹس ٹو جموں اینڈ کشمیر. اس کے پہلے بھی ہم نے رکھا ہے اس کو، یہ ہمارے ایجنڈے میں ہے، کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہی ہوں. اگر وہ ہمیں ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم یہ کمپنسیٹ کریں، ہمیں اس کے بدلے بجلی دیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سہولت دے سکیں. اسکیمز کو ہم ایک اسٹیٹ یونیورسٹی جس میں 2 میڈیکل کالج وہ کرنا چاہتے ہیں ہم، ایک جموں میں ایک کشمیر میں. ڈزنی جو آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی صاحب نے اپنے ٹائم میں کئی جگہ پہ آرمی سے زمین جہاں حالات ٹھیک ہوئے تھے خالی کروائی تھی. ہم نے یونیورسٹی کیمپسز بنائے تھے. اس کے بعد ٹٹو گراؤنڈ کی بھی شروعات مفتی صاحب نے کی تھی. اور مجھے امید ہے کہ جیسے خود ہوم منسٹر نے کہا اس کو ہم خالی کریں گے. وہاں ہم ڈزنی ایڈونچر پارک بنانا چاہتے ہیں جس کی شروعات مفتی صاحب کے وقت میں ہوئی تھی. فری لیگل ایڈ جو ہمارے جیلوں میں ہمارے لوگ بند ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فری لیگل ایڈ ملے تاکہ جلد از جلد وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچے. انڈر ٹرائلز ہیں، ان کی بیچاروں کی عدالت میں کاروائی بھی نہیں ہوتی ہے. دربار ملک کو ہم ریسٹور کرنا چاہتے ہیں اور پاسپورٹ میں جو لوگوں کو دقت ہے اس کو ایز کرنا چاہتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس باہر سے میڈیکل کالجز سے آتے ہیں، میں نام نہیں لوں گی کہاں سے، ان کی ڈگریز ریکگنائز نہیں ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے بھی جدوجہد کریں گے. اور اکیڈمک سیشن جو مارچ میں ہوتا ہے اس کو ہم آرڈنری ٹائمنگ پہ لے جائیں گے. اور ٹیمپلز اور مسجدیں اور گردواروں کو ہم فری الیکٹریسٹی دینا چاہتے ہیں. پنجابی کو آفیشیل لینگویج میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. اور ٹرانسجینڈرز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں خصوصی ہم اپنا ایک پیکیج لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پورے حقوق ملے، ہیلتھ کیئر ملے، اکنامک اپورچونیٹیز ملے اور ان کو بھی وہ بھی عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم نے ان لوگوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے. ان کی زندگی بہت مشکل حالات سے گزرتی ہے. اور پریس کلب جس کے اوپر اس وقت پورا قبضہ کر کے رکھا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اسے ان چنگل سے اس کو چھڑا کے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو دیا جائے. اور محرم کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ بجٹ ہو. اور ڈسیبلٹی جو لوگ ہیں ہمارے ان کے لیے ایک کمیٹی تاکہ جو بھی ان کے جابز خالی ہیں سرکار میں ان کی جلد از جلد ان کو پر کیا جائے. اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آرٹیفیشل لمبس کے علاوہ ہم سکوٹیز دے سکیں. میں نے دیکھا کہ جب آپ ان کو سکوٹی دیتے ہیں تو یہ کتنے موبائل بن جاتے ہیں، ان کے کتنے سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں. اسی طرح کنسٹرکشن آف مغل سرائے، مغل روڈ ٹنل اور مغل روڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹرائبل ٹریڈ آن پونچھ راولا کوٹ روڈ، واٹر ٹورزم سرکٹ جہلم ولر مانسبل لیک، ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ٹو انہانس اینڈ پروموٹ ریلیجس ٹورزم بٹوین جموں اینڈ کٹرا، سناسر اور مانسر لیک پہ ٹورزم کو بڑھانے کے لیے، چناب ویلی میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے، ڈوگرا ہیریٹیج سینٹر ایک جموں میں، کشمیر ہیریٹیج سینٹر ایک کشمیری میں، بنی بسولی ٹورزم کوریڈور، لورن گلمرگ ٹنل، بدر شپین روڈ اور 2% رائلٹی فرام ہائیڈرو پروجیکٹس اکراس جے کے تاکہ لوکل ایریاز کے اوپر وہ خرچ کیا جائے. اور اینوئل پیڈ انٹرنشپ program for unemployed youth in government enterprises, departments, corporations across all regions of Jammu and Kashmir. اور جو پی اور جے کے ریفیوجیز کا پینڈنگ کمپنسیشن ہے اس کو دیں. اور اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے لیے 1 بیڈروم کے بجائے 2 بیڈروم. اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی ہے 5 مرلہ لینڈ ٹو لینڈ لیس، اس میں ان کو پریورٹی دی جائے. اور بھی جو ان کو واپس باعزت واپس لانے کے لیے جو بھی ہم سے کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہم کریں گے.
ट्राइबल्स के लिए फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स फॉर लैंड राइट्स, अनलॉफुल डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए, और उसके बाद जो इनकी फीमेल्स होती है उनके लिए अलग अलग सेंटर खोलना, ट्राइबल कल्चरल सेंटर खोलना, इनके लिए स्कूल और हॉस्टल, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स के लिए हॉस्टल, ताकि जो ट्राइबल गर्ल्स हैं उनको चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो, श्रीनगर में हो, जम्मू में, उनको आसानी हो जाए। और भी बहुत कुछ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और एस्टैब्लिश मिनी सेक्रेटरी सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। हम चाहते हैं कि एक एक मिनी सेक्रेटरी हो। आप बोर हो रहे हैं, मैं समझती हूँ, मगर क्या करें, लोग सुनना चाहते हैं। फ्लाईओवर्स को हम बनाना चाहते हैं जहां जहां जरूरत हो, और डाउन टाउन एज लोकेलिटीज एज हेरिटेज एरियाज। आपको पता है कि अगर आप डाउन टाउन में जाएंगे तो इतना कुछ वहां पर है। वो जो पुराने मकाने, मुफ्ती साहब का भी ये आइडिया था, अल्लाह ताला ने उनको मौका नहीं दिया। हम चाहते हैं कि उसको हेरिटेज सेंटर के तौर पे हम उसको डेवलप करें। और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में भी बहुत कुछ है, जो उनके लोन्स हैं। मैं ज्यादा अपन को इतने सब कुछ पढ़ के बोर नहीं करना चाहती हूँ। और इशू बेस्ड फाइनेंशियल पैकेजेस हैं, ये तो बाकी आपको इसमें मिलेगा, मगर शुक्रिया बोलो से जल्दी से शुक्रिया नहीं। एम्प्लॉयमेंट में मैंने बोला ना कि जो भी जितनी भी कोई मेरे ख्याल में 1 लाख के करीब वैकेंसीज है, उसको हम विद इन 1 ईयर उनको आइडेंटिफाई करके बहुत ही जल्दी उसको फास्ट ट्रैक पे उसकी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। और जो ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं जिनके रिक्रूटमेंट की जिनकी वजह से रुकी है, हम उनको पूरी तरह से आउट कर देंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए ये इलेक्शन खाली इसलिए नहीं है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। पावर कभी हमारा गोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हम जो जम्मू कश्मीर का के जो मुश्किलात है, जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसमें अपना रोल अदा कर सके। और यही हमारे इसमें जो है सबसे ज्यादा है। और जो जमात की मैं बात करूंगी, जो बैन जमात पे बैन है, उस जमात इस्लामी जिसके साथ ये अलग अलग मीटिंग करते हैं, उनको तरले करते हैं इलेक्शन में हिस्सा लो। वो इलेक्शन में हिस्सा ले, बहुत अच्छी बात है, पर हम उनको बैन हटाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनके जो एसेट्स उन्होंने फ्रीज किए हैं, उन पे जो बैन लगाया गया है, उसको हटाने के लिए भी हम जदोजहद करेंगे। जी मैम यहाँ से, चूँकि आपने 2 चीज़ों को बड़ी तरजीह दी है। एक है कि आर्टिकल 370, 35 और स्टेट को कहा कि इससे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो मसला कश्मीर है, कश्मीर इशू है। क्योंकि आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर है, जहाँ स्टेट के पास पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन में मसले कश्मीर पे बात करना या इस इशू को एड्रेस बैनुल-अक़वामी स्तर पे करना, इज इट पॉसिबल? मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है। मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया है। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है, उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है, इनके जो सबसे बड़े लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, उन्होंने यासिन मलिक से बात की, उन्होंने मीरवाइज से बात की, उन्होंने शबीर शाह से बात की। तो आज उन्हीं लीडरों को जेल में डालने से तो मसला हल नहीं होता ना। इंजीनियर रशीद को फिर वोट नहीं मिलते, वो भी तो प्लेबिसाइट बोलते हैं। तो मसला तो जिंदा है, और हम लोग भी जिंदा है, इसलिए हम जदोजहद करेंगे। और जिस तरह हमने मुजफ्फराबाद रोड को, जिसको मैं आज होम मिनिस्टर को फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जो वहाँ कारोबार ठप हुआ है उसको दोबारा चालू कीजिए, बैंकिंग फैसिलिटी दे दीजिए, और जो लोग उस कारोबार से जुड़े हैं उनकी जिंदगी मुश्किल मत कर दीजिए टैक्स लगा लगा। एक ही सवाल देखिए, मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए ये इलेक्शन जो है, या जो पॉलिटिकल जो हमारी जमात है, ये
इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। वी हैव अ बिगर गोल हमारा है, और वो गोल है कि जो जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से इस मुसीबत में है, जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे कोई भी वर्दी वाला आपके कपड़े उतार के आपकी चेकिंग कर सकता है। उस वक्त आपकी डिग्निटी कहाँ रही? हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लगता है जैसे इसने मेरे बच्चे ने कहा कि इतना है, असेंबली बिल्कुल सही है। इन्होंने यहाँ के चीफ मिनिस्टर को म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने की भी इज्जत नहीं रखी, एक म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली को। मगर जो ये हमें जगह देंगे हम उसी में लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे इनसे। महबूबा जी एक सवाल है, 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी वॉइस ये रही कि बीजेपी की पूरी ताकत आपकी पार्टी में तोड़ने में लगी। बिल्कुल। अब वही लीडर वापस आ रहे कितने? हैं, बीजेपी के हाथ है। नहीं, हमारे तो हम तो सबको नहीं ले रहे हैं। वी आर बीइंग वेरी चूजी अबाउट दैट। अगर आपने देखा होगा तकरीबन 40 लीडर गए थे और 40 के 40 वापस आना चाहते हैं, मगर वी आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव। जिन्होंने पीडीपी के एजेंडे के खिलाफ कभी बात नहीं की, और जिनके हमारे अपने लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वो एग्री करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं। बाकी यहाँ ओपन एंट्री किसी की नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी, कांग्रेस के लीडरों से जब बात करते हैं तो उनको उतना ज्यादा एतराज नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल खुल के एतराज है। जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा, क्या आपको कांग्रेस ने अप्रोच किया है? देखिए मैं कह रही हूँ, आपको कुछ मिलने वाला है? मैं कह रही अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर उन्होंने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए। क्या पीडीपी आज की डेट में इलेक्शन प्रोसेस को बेमानी समझती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इलेक्शन हमारे लिए जरूरी, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, असेंबली, क्योंकि ये हमारे लिए एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, ये एक रास्ता है। इसको हम गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट समझते हैं। पीडीपी ने अपना मैं यहाँ से एजेंडा था सेलेक्ट रूल प्रीवियसली तो ये जो मैंने बातें की, ये क्या है? ये क्या है? ओपनिंग ऑफ रोड्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स क्या है? दोनों कश्मीरों के बीच में मिलाप करने की वो क्या है? तो सभी कुछ तो मैं बोल रही हूँ। पुराने रास्ते जो खुलते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया में, वो क्या है? सब कुछ तो वही है। 2014 में आपने ऐसे ही जो है मैनिफेस्टो यहाँ पे जो है रिलीज किया था, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस किया गया। क्या इस बार मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है? क्या हम पोस्ट पोल ऐसे कोई एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाए थे, बीजेपी जमात के साथ नहीं। और उनको ये शर्त थी कि आप 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे, और जब तक सरकार रही उन्होंने नहीं छेड़ा। आज चूंकि उन्होंने 370 को खत्म किया, इसलिए अलायंस किस चीज को बचाने के लिए करेंगे? तब तो हमने बचाने के लिए करी थी। तो ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं है।